Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 16 of class 12, that is environmental issues. Here we will discuss about some of the very important MCQs regarding this chapter that were asked in the previous year question papers. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is, which of the following in the sewage treatment removes the suspended solid? The correct answer to this question is option number A, that is primary treatment. The sludge is a semi-solid material that is present in the contaminated water. It is separated during the wastewater treatment and are decomposed into the simpler organic material which are used to produce the compost and to help to increase the fertility of the soil. And the process of degradation of the sludge is known as the sludge degradation, and the suspended solids are removed during the primary treatment. Therefore, the correct answer is option number C. The second question is, which of the following statement is not valid for the aerosols? The correct answer to this question is option number C, that is, they cause increased agriculture productivity. The aerosols are basically the small particles of all sort of solid or liquid substances suspended in the soil. They block the stomata of the plant and prevent the gaseous exchange between the plant and the atmosphere. They may also change the climate of an area. Therefore, the correct answer is option number C, that is, they cause increased agriculture productivity. क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इनवैलिड है एरोसॉल्स के लिए, दैट्स वाई ये सही आंसर है, बिकॉज जो एरोसॉल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, चाहे वो किसी सॉलिड के हों या फिर लिक्विड सब्सटेंस के हों, और वो एयर के अंदर सस्पेंड रहते हैं और ये नॉर्मली जो स्टोमेटा होता है प्लांट का उसको ब्लॉक कर देते हैं और अल्टीमेटली अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में वो नहीं हो पाता है और इसी वजह से वो किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है उसको भी चेंज कर सकते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्लांट का स्टोमेटा होता है उसके दो फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज और दूसरा फंक्शन है वो है ट्रांसपिरेशन का. जो प्लांट है वो स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं सो दैट कि उनका जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसीजर है वो हो सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट DDT concentration in the aquatic food chain shall occur in. The correct answer is option number D, that is seagull. The DDT is a toxic substance which get concentrated subsequently in the food chain of an aquatic ecosystem in the following manner. First of all, the phytoplanktons which have 0.04 ppm, then to the eel that has 0.5 ppm, then crab that has 2 ppm, and at last the seagulls that has 25 ppm. Thus, the animal or the organism acquiring the highest position in the food chain would have the highest DDT concentration, and here the seagull is the correct answer. This procedure is known as the biological magnification or the biomagnification. यानी कि जो DDT है वो एक बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंस है और ये कॉन्सेंट्रेटेड होता रहता है फूड चेन के अंदर जैसे जैसे एक्वाटिक जो फूड चेन है वो चलती रहती है. सबसे पहले अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो वहाँ पे 0.04 ppm DDT है. उसके बाद जो सेकंड में आएगा वो है ईल जिसके अंदर 0.5 ppm होगा, देन क्रैब दैट हैज़ 2 ppm, एंड देन एट लास्ट सीगल दैट हैज़ 25 ppm DDT कॉन्सेंट्रेशन. तो इसीलिए वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड चेन के अंदर हाईएस्ट पोजीशन पे होगा उसी का जो DDT कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा. और जो हमने ऊपर फूड चेन की बात करी वहाँ पे जो हाईएस्ट पोजीशन थी वो सीगल की थी, इसीलिए ये जो हाईएस्ट अमाउंट होगा या कॉन्सेंट्रेशन होगा DDT का वो सीगल के अंदर सबसे ज़्यादा होगा. Therefore, the correct answer is option number D, that is seagull. A lake which is rich in the organic material may result in. The correct answer to this question is option number B, that is mortality of the fishes due to the lack of oxygen. The rich growth of the microorganisms consume most of the dissolved oxygen so as to deprive the other organisms. It generally occurs at the bottom layer of the deep lake. Addition of the excessive plant nutrient intensifies the eutrophication and it is harmful to the fishes and the other aquatic life. यानी कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेंगे और इसी की वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे हैं वो ऑक्सीजन के लिए डिप्राइव हो जाएंगे
और नॉर्मली जो प्रोसीजर है ये जो बॉटम लेयर होती है डीप सीज की वहाँ पे होता है। प्लस अगर बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उसको यूट्रॉपिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको भी ये इंटेंसिफाई कर देते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे जो फिशेस और जो अदर एक्वाटिक लाइफ है वो हार्मफुल हो जाती है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। A lake rich in the organic waste will reduce the dissolved oxygen. The organic waste will increase the biological oxygen demand of the lake and thus depleting the O2 content and may result in the death of the fishes. यानी कि कोई भी लेक जिसके अंदर अगर ऑर्गेनिक वेस्ट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देगा और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो BOD दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ करवा देगा और अल्टीमेटली जो CO2 का कंटेंट है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो फिशेस हैं उनकी जो डेथ है वो होने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज रिसीविंग द इफिलेंट फ्रॉम। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, that is petroleum industries. The BOD is increased by dumping of the waste rich in the phosphorus and the nitrogen compound as these two favor the algal growth, causing the algal bloom and the death of the other underwater plants due to the lack of sunlight. The presence of the excessive organic material favors the microbial growth and reduces the available dissolved oxygen. The petroleum industry waste is rich in the radium-based toxic substances that do not favor the algal and the phytoplankton growth and therefore has no effect on the BOD. Therefore, the correct answer to this question is option number A, that is petroleum industry. यानी कि जो BOD है वो नॉर्मली तब इंक्रीज होती है जब हम ऐसा वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज या डंप कर रहे हैं हमारे वाटर के अंदर जिसके अंदर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हैं, और जो भी जिनके अंदर भी ये फॉस्फेट और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर ज़्यादा होते हैं तो उनकी वजह से जो एल्गल ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम होगा। और हमें पता है कि अगर एल्गल ब्लूम ज़्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं या फिर जो दूसरी एक्वाटिक लाइफ है उनकी डेथ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर वहाँ पे तो उससे माइक्रोबियल ग्रोथ भी बढ़ेगी और उससे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। अब ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसके अंदर जो रेडियम बेस्ड जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉर्मली जो रेडियम बेस्ड हैं ये एल्गल या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ है उसको फेवर नहीं करते हैं, इसीलिए इनका जो BOD है उसके ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। Therefore, the correct answer is option number A, that is petroleum industry. And the next question is, which of the following is the most suitable indicator for the SO2 pollution in the environment? The correct answer to this question is option number B, that is lichen. So as we have learned that the Pinus species are those species that invade a bare area are called as the Pinus species, wherein the primary succession on the rock, these are usually lichens which are able to secrete the acid to dissolve the rock and help in weathering and the soil formation. Lichens are widely used as the environmental indicator or the bioindicators. If air is badly polluted with the SO2, then there may be no lichens present. Therefore, the correct answer is option number B. यानी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पाइनो स्पीशीज़ हैं ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि किसी बारे एरिया यानी कि बिल्कुल खाली एरिया के अंदर जो सबसे पहली स्पीशीज़ आती हैं। अब जब भी कभी जो प्राइमरी सक्सेशन होता है रॉक के ऊपर तो नॉर्मली वहाँ पे सबसे पहले लाइकेंस आती हैं, क्योंकि जो लाइकेंस हैं वो कुछ ऐसे एसिड को सिक्रीट करती हैं जो कि जो रॉक्स वगैरह उनको डिज़ोल्व कर देते हैं और उसकी वजह से जो रॉक है उनकी वेदरिंग होगी और सॉइल की फॉर्मेशन होगी। अब नॉर्मली जो लाइकेंस हैं इनको एज ए एनवायरमेंटल इंडिकेटर या फिर बायो इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं पे एयर के अंदर SO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेंस प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए हम इसको एज अ बायो इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। And the next question is, increased in the concentration of the toxicant at the successive trophic level is known as. The correct answer to this question is option number B, that is biomagnification. The biomagnification is also known as the bioamplification or the biological magnification and the increasing concentration of the substance such as the toxic material in the tissues or the tolerant organism at the successively higher level in the food chain. The substances become increasingly concentrated in the tissues or the internal organ as they move up the chain.
The bioaccumulants are the substances that increase in the concentration in the living organisms as they take in the contaminated air, water, or the food because the substances are very slowly metabolized or excreted. Therefore, the correct answer to this question is biomagnification. यानी कि ये जो बायोमैग्निफिकेशन है इसको हम बायो एम्प्लीफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। और इस प्रोसीजर के दौरान कोई भी सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है, स्पेशली टॉक्सिक केमिकल्स का, और ये जाके एक्यूमुलेट होने लगता है जो टिश्यूज़ हैं उन ऑर्गेनिजम्स के उनके अंदर। और जैसे जैसे जो फूड चेन के अंदर हायर लेवल्स आते जाते हैं वैसे वैसे ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनका जो अमाउंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे या फिर जो टिश्यूज़ होंगे वहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे जैसे वो अगर कोई भी कंटामिनेटेड एयर है, वाटर है या फिर फूड को लेते हैं, और ये बहुत स्लोली मेटाबोलाइज होता है और बहुत ही स्लोली एक्सक्रीट आउट किया जाता है। Therefore, the correct answer to this question is option number B, that is biomagnification. The next question is, the acid rain is caused by the increase in the atmospheric concentration of. The correct answer to this question is option number B, that is SO2 and NO2. The acid rain is generally refers to the participation with the pH of less than 5. It is a mixture of H2SO4 and HNO3. The ratio of the two acids vary depending on the relative quantities of the sulfur oxide and the nitrogen oxide present in the atmosphere. These oxides are mainly produced by the combustion of the fossil fuels, smelters, industries, power plants, automobile exhaust, etc. The SO2 and the NO, when present in the large quantities dissolved in the water vapors, form the sulfuric acid, and the nitric acid which dissolves in the rainwater, resulting in the acid rain, that is H2SO4 and HNO3, which in turn cause a very great damage to the forest as well as the vegetation. यानी कि जो एसिड रेन है इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो लेस देन 5 होता है, पीएच जो होगा वो लेस देन 5 होगा, और हमें पता है कि जिस भी चीज़ का पीएच लेस देन 7 होता है वो एसिड माना जाता है, और जिसका मोर देन 7 होता है उसको हम बेस कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मली अब ये जो एसिड रेन है यहाँ पे मिक्सचर होता है H2SO4 प्लस HNO3 का, और इन दोनों एसिड्स का जो रेशियो होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सल्फर ऑक्साइड की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये जो दोनों ऑक्साइड है नॉर्मली फॉसल फ्यूल हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट हैं, या फिर जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो रिलीज़ होता है गाड़ियों से उनकी वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड है जब भी ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं तो ये वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, और ये फिर फर्दर रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाएंगी और एसिड रेन का वो जो फॉर्मेशन है वो करेंगी, और अल्टीमेटली जो एसिड रेन होगी वो बहुत ही डैमेज कॉज करती है हमारे फॉरेस्ट को और हमारी जो वेजिटेशन है यानी जो प्लांट लाइफ है उसको भी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूट्रोपिफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग ऑफ द फिशेस इज मेनली ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ. The correct answer to this question is option number A, that is oxygen. The eutrophication is the process when the water bodies receive the excessive nutrient that stimulate the excessive plant growth. This can lead to the overcrowding and the competition for the sunlight, space and the oxygen. This condition creates the lacking of the essential nutrient for the fishes, due to which they die. The eutrophication is the process by which the excessive amount nutrient increases. यानी कि जो यूट्रोपिफिकेशन है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो प्लांट ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो ओवर क्राउडिंग यानी कि कम जगह के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होने लग जाएगी और वो आपस में कम्पीट करने लगेंगे सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए। अब ये जो कंडीशन आ रही है इसकी वजह से ये होगा कि जो फिशेस वगैरह हैं उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए वो उनको नहीं मिल पाएंगे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। Therefore, the correct answer is option number A, that is oxygen. The next question is, the Air Prevention and the Control of the Pollution Act came into the force in. The correct answer to this question is option number B, that is 1981. The Air Prevention and the Control of Pollution Act was intact in the 1981 and amended in 1987
to provide for the prevention, control and the abatement of the air pollution in India. यानी कि जो एयर एक्ट था वो नॉर्मली 1981 में आया था, लेकिन इसको अमेंड किया गया था 1987 में। और ये जो एक्ट है वो इसलिए आया था सो दैट कि हम हमारे जो एयर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें, सो दैट कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम सेफ गार्ड कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। यानी कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी जो हम पेड़ों को या फिर जो जंगलों को काट रहे हैं उसके जो हमें कटिंग है उसको कम करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हमें कम करना पड़ेगा, तभी जाके हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एंडोर्स्ड एट। The correct answer to this question is option number A, that is COP3. The Kyoto Protocol Climate Change Conference, that is COP3, held in the Kyoto, Japan in 1997. The developed countries agreed to the specific target for cutting their emission of the greenhouse gases. A general framework was defined for this, with the specific to be detailed over the next few years. This became known as the Kyoto Protocol. यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक टाइप की कॉन्फ्रेंस थी जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई थी, और ये हुई थी क्योटो के अंदर जापान में 1997 में। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये नॉर्मली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और वो अग्री हुए थे कि जो उनके यहाँ से जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसको वो कम करेंगे, और यहाँ पे एक जर्नल फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा जहाँ पे अगले कुछ सालों के लिए कितना एमिशन होना है, कितना क्या कुछ होना है, उसको पैरामीटर्स को सेट किया जाएगा, और इसी को हम फिर फर्दर जाना जाने लगा है क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। The CFCs or the chlorofluorocarbons are responsible for the ozone depletion. After the release of CFCs into the troposphere, the CFCs goes to the stratosphere where they are broken down by the UV radiation releasing the chlorine. In the presence of sunlight, the chlorine breaks down O3 into the O2. The reason is correct but not the correct explanation. यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। नॉर्मली ये होता है कि जब CFCs रिलीज होती हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो वो ट्रोपोस्फेयर से माइग्रेट कर जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और वहाँ पे UV रेडिएशंस की वजह से वो ब्रेक डाउन होती हैं, और CFCs के ब्रेक डाउन होने की वजह से क्लोरीन रिलीज होते हैं, और जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस के अंदर जो क्लोरीन है वो O3 से O2 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, और अल्टीमेटली जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोप्रिएट मेजर टू रिड्यूस द ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन was committed of the correct answer to this question is the option number A, that is Kyoto Protocol. The Kyoto Protocol was signed in 1997 under the agencies of the United Nations Framework for the Climate Change UNFCCC in the 1997 and got effective from the 2005. It is the only legal binding protocol to reduce the emission of greenhouse gases like the carbon dioxide, chlorofluorocarbons, sulfur hexafluorides, etc. The first commitment provides for the 5% of reduction. यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो 1997 के अंदर साइन किया गया था, और ये इफेक्टिव हुआ था 2005 से, और ये एक इकलौता ऐसा लीगल प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि वो अपने यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन कम करेंगी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, CFCs हैं, उनके एमिशन को वो कट डाउन करेंगी। और जो सबसे पहला कमिटमेंट था वो ये था कि वो अपने यहाँ से 5% जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रेइंग ऑफ द DDT प्रोवाइड्स द पोल्यूशन ऑफ। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल। The dichloro, diphenyl, trichloroethane, that is DDT, was widely used as an insecticide. However, its usage resulted in the widespread pollution of the air, water and soil. The DDT is a stable compound, but it evaporates very easily and mixes with the atmosphere to become an air pollutant.
and cause a number of respiratory disease. It is absorbed by the soil particles such that it persists for the longest duration and kills the essential microbial fauna. It does not dissolve in water, but it dissolves in the adipose tissues of the aquatic animals. So in the water, it entered in the aquatic food chain and its successive consumption result in the biomagnification. Therefore, the correct answer to this question is air, water and soil pollution. यानी जो DDT है उसको बहुत टाइम से एज ए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है. इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए काम में आते हैं. लेकिन जो DDT है उसका एक्सेसिव जो कंजप्शन है उसकी वजह से एयर, वाटर और सॉइल का पोल्यूशन होने लगा. नॉर्मली जो DDT है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये बहुत इजीली इवापोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर के अंदर जाने में मिक्स हो जाता है उसके बाद, और फिर ये एक एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है और बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं उनको भी कॉज करता है. अब नॉर्मली ये सॉइल पार्टिकल्स के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरीके से होता है कि बहुत लंबे टाइम तक ये वहाँ पे रहता है और जो असेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल के अंदर उनको अल्टीमेटली किल कर देते हैं. ये नॉर्मली वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के उनके अंदर डिजॉल्व हो जाता है और फिर वहाँ से ये एक्वाटिक फूड चेन के अंदर एंटर करता है और फिर धीरे धीरे जो इसका जो सक्सेसिव कंजप्शन है उसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन होने लगते हैं. Therefore, the correct answer is option number D, that is air, water and soil. The next question is, dB is the standard abbreviation used for the quantitative expression of. The correct answer to this question is option number A, that is a particular pollutant. The noise is the undesired high level of sound. We have got used to the associating the loud sound with the pleasure and the entertainment, not realizing that noise cause the physiological and the psychological disorders in the humans, wherein a brief exposure to the extremely high sound level 150 decibel or more generated by taking off a jet plane or rocket may damage our eardrums, thus permanently impairing the hearing ability. The dB is the abbreviated for the decibel. It is a unit of the sound and hence used to measure the sound pollution. Therefore, the correct answer is option number A. यानी कि जो नॉइज़ है वो एक अनडिज़ायरेबल हाई लेवल होता है साउंड का. अब चूंकि हम इतने आदी हो चुके हैं लाउड साउंड से कि हम उसको एज अ प्लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको कॉज करती है. और अगर बहुत ज़्यादा हाई साउंड यानी कि 150 डेसिबल या फिर उससे ज़्यादा की जो अगर हाई साउंड हो जो कि नॉर्मली एक जेट प्लेन या रॉकेट की वजह से जनरेट होती है, वो हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकती है और इससे हम हमेशा के लिए भी हियरिंग इम्पेयर हो सकते हैं. अब ये जो DC है ये डेसिबल के लिए नॉर्मली एक एब्रीविएशन यूज़ की जाती है और ये साउंड की यूनिट होती है और इसीलिए इसको हम एज अ साउंड पॉल्यूटेंट यूज़ करते हैं. The next question is, the greenhouse gases is related to. The correct answer to this question is option number B, that is global warming. The climate change is caused by the rising concentration of the greenhouse gases in the atmosphere because the molecules of these gases stayed in the atmosphere for a long time. Methane for around 12 years for instance, and the carbon dioxide for up to 200 years. यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अंदर धीरे धीरे जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है. नॉर्मली जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं. फॉर एग्जांपल जो मीथेन है वो लगभग 12 साल तक रहती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अप टू 200 ईयर्स तक भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रह सकती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट. The correct answer to this question is option number C, that is all membrane system. यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है एक बहुत ही ख़राब पॉल्यूटेंट है ये और ये हमारे जितने भी मेम्ब्रेनस सिस्टम हैं उनको अफेक्ट करते हैं. So these were some of the very important MCQs from this chapter. And if you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel because your every subscription matters to us a lot. And you can also tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.